پارٹی والے آ رہے تھے، پیپلز پارٹی بلائیں انہیں، آواز آ رہی ہے؟ گیلانی صاحب کو بلائیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ آج ٹکٹس چلا رہے تھے نا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، پی ڈی ایم اندر سارے ہم بڑے مزے سے کہکے لگا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ٹکٹس پہ ہنس رہے تھے. انجوائے کر رہے تھے. یہ کس نے چلایا ہے؟ یہ بھی کسی سے کہہ رہا ہے. نہیں، کسی نے کسی سے چلوایا. گیلانی صاحب کدھر ہیں؟ سوری. گیلانی صاحب ان کو تو پہلے بھیجا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج یہاں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے. اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم توڑ چکی ہیں. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے. میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں. اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے. آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں. تو ایک ہدف آج حاصل ہو چکا ہے. دوسری بات، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی. سو آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے. اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے.
हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी क़ियादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फ़ैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़े वजाहत के साथ अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर रहे हैं। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उसको अपनी फ़ौज समझते हैं, हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं। ये हमारी दिफाई क़ुव्वत है, लेकिन दिफाई क़ुव्वत अगर अपने पेशेवराना ज़िम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्ज़े में लेती है, इससे उलझनें पैदा होती हैं। आज अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो वो इस तजावुज़ की वजह से है कि अपने हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने सिर्फ़ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तैबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम ख़राबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने पीडीएम के तहत मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं, इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टेयरिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफ़ों की बात की है, इस्तीफ़े आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफ़ों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। मौलाना साहब, सेनेट के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में ही अभी जिस तरह आपने आके भी बात किया, क्या सराहियाँ हो रही हैं, कोई कह रहा है जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है।
और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़िक़ा आरा कायम की गई। मौलाना साहब ये फरमाएगा आपकी जानिब से हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई हुकूमत की जानिब से। मरियम नवाज की कल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी ट्रेस किया गया मेरी गाड़ी को। आपकी क़यादत पीडीएम की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसे? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मौलाना साहब ये फरमाएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं होने चाहिए, फिर पीडीएम खुद मुज़ाकरात करे। आप कल बहसियत पीडीएम सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले तो क्या आपने सबको इत्मीनान में लिया था? और दूसरा, क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? इसमें ऐड कर लें, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आ, तो पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क़यादत करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का अब हम इसके जिम्मेदार नहीं है। बाकी रही बात जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। अभी आपने बात की कि आप मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसको भी समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैलेगा और क्या इससे जो हज़रत हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे क्यों अवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेनरी वहाँ अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। मेरे ख्याल में सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के हवाले से हिमायत का ऐलान किया है या? पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में एक फ़र्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। मौलाना साहब और मरियम साहब दोनों से मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं। दूसरा ये बताया कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाई जाए। क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अदम एतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब आप बता दें कि आप लोगों ने इत्तफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने CSE की जो तजवीज़ सामने रखी थी, आप लोगों ने PMLN ने इत्तफाक मुकम्मल किया है इसके ऊपर? मौलाना साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। देखिए बहुत सी, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती हैं कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको नहीं हम आपको वो क्या कहते हैं सरप्राइज देते रहेंगे। के हवाले से बता दें जो आप सवाल किए तरीके एतमाद के हवाले से कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी। इसका कोई फौरी जल्दी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो दूर कर? पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे, पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बरामद हुए। बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में?
को आगाह कर दें। दूसरा, मार्च का आपने कहा इस्लामाबाद की तरफ करेंगे या रावलपिंडी की कुछ तरफ? चीज़ें जो हैं, रावलपिंडी गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? कुछ चीज़ें जो इजलास के अंदर जो बात आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती। संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है तो ये फैसला हमें अभी करना है। ठीक है, थैंक यू। मेहरबानी जी। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, ये किसकी आशीर्वाद इनको हासिल है? कौन भागे फिर रहे? ये जो मुज़ाकरात मोहम्मद अली दुरानी साहब किस गेट से ताल्लुक? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अच्छा मरीम साहब ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात की, दो इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफ़ों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को खाना वाना मिला? आप मीडिया सेल तो सबसे ज्यादा सर्दी सबसे ज्यादा थी। मीडिया सेल नहीं मरियम साहब तो बिजी है। मरियम औरंगजेब आपको मिल जाता है, हमें मिलता जब मिलता। नहीं